السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ ہم نے یہاں پر ایک اسٹوری بریک کی تھی گزشتہ روز، سانحہ ماری پور ایک اور اس میں ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو 2 لوگوں پر تشدد ہوا تھا اور ان کی ہلاکت کا معاملہ تھا، اس میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 7 ملزمان ملوث تھے جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 40 مشتبہ افراد ہیں جن کو حراست میں لیا جانا ہے، تفتیش کرنی ہے۔ لیکن عجیب و غریب معاملہ یہ دیکھنے میں آیا جب انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی، سرچ آپریشن کیا جا رہا تھا، تو اس کے دوران جو ملزمان تھے انہوں نے فائرنگ کی ہے پولیس کے اوپر، اور قوم پرست جماعتوں کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک کردار ہے کہ قتل کے خلاف ماڑی پور پر شدید احتجاج کرتے نظر آئے، اور احتجاج کے دوران بھی ہم نے جو ہے وہ ہنگامہ آرائی دیکھی، اور پولیس کی جو ہے وہ اس میں انوالومنٹ ہم نے اس طرح دیکھی کہ پولیس جب کارروائی کرتی نظر آئی، روکتی نظر آئی، تو کہیں نہ کہیں ایسا لگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرپسند عناصر ہیں سرچ آپریشن کے دوران، ورنہ فائرنگ نہیں ہوتی ملزمان کی جانب سے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، چیف رپورٹر ہمارے ساتھ آن کال موجود ہے اسد زیدی۔ اسد، یہ معاملہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سٹوری بریک کی تھی، آپ ہی اسی سیگمنٹ کا حصہ تھے، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سرچ آپریشن جاری ہے جس میں مشتبہ افراد کو حراست میں لیے جانے کے امکانات بھی تھے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اس دن ہم نے اسٹوری بھی کی اور اس میں ہم نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ جو عدم برداشت کی وجہ سے 2 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اگر یہ آگے چل کر یہ پتہ چلتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد کہ یہ بے گناہ لوگ تھے، تو پھر اس کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر جائے گی؟ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور وہ لوگ جو اپنی بچوں کی روزی کے لیے نکلے تھے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر وہ 2 لوگ اپنی جان سے گئے۔ یہ تھا جو واقعہ۔ اس کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آئی وہ حیران کن طور پہ ان چیزوں کی بات کی گئی جس پہ ہم بار جو ہے بات کرتے چلے آتے ہیں اور پھر اس کی طرف نشاندہی بھی کرتے چلے آئے۔ سب سے پہلے بات یہ تھی کہ میں آئی جی سندھ کی بات کروں گا، جنہوں نے جو اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی کہ جی یہ لوگ گاڑی میں موجود تھے، نجی ٹیلی کام کمپنی کے ملازم تھے اور ٹاور کے سگنل چیک کرنے گئے تھے، گاڑی میں میڈیکل کٹ رکھی ہوئی تھی اور میڈیکل کٹ کے اندر پائیوڈین بھی رکھی ہوئی تھی، اور پائیوڈین جو ہے وہ یوزلی اس لیے عمومی طور پہ رکھی جاتی ہے کہ کوئی چوٹ ووٹ لگ جائے تو وہاں پر فرسٹ ایڈ کے طور پہ۔ یہ تھی ان کی اسٹیٹمنٹ۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایس ایس پی کیماڑی بھی اپنے بیان دیتے دکھائی دیے، اور ان کا بھی کہنا تھا فدا حسین جامری کا کہ مجمع نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پر ان کی گاڑی کے پاس شور شرابہ دیکھا تو لوگ اکٹھے ہوئے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا طبقہ کم ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ بچے اغوا کرنے والے آئے ہیں اور اغوا کر کے لے کر جانا چاہتے تھے، تو اس کے اوپر جو ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد صفاقانہ طریقے سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ 2 اسٹیٹمنٹس ہیں 2 ذمہ دار پولیس افسران کی۔ اس کے بعد ان پہ اگر بات کر لی جائے اور پھر ان مظلوموں کی بات کر لی جائے جن کو بے دردی سے صرف اس پاداش میں مار دیا گیا کہ شاید وہ جو ہے کوئی بچہ اغوا کرنے والے تھے یا ڈاکو تھے، تو دیکھیے بلال، اب سرچ آپریشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹھیک ہے، اب تک 7 ملزمان جو نامزد ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو چکے، 40 سے زیادہ وہ لوگ جن پہ شبہ ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ 200 سے زائد لوگ وہ ہیں جن کو اس میں نامعلوم کو نامزد کیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو 2 لوگ تھے اسحاق اور ایمن جاوید، ان غریبوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ان لوگوں نے کیا وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ اور اس کے بعد نہیں تو اسد، یہ جو پولیس کی جانب سے اور خاص طور پر ہائر آفیشلز کی جانب سے اسٹیٹمنٹ کوٹ کیا گیا ہے کہ شفقانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اس بات کی جو ہے وہ کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ وہ دونوں ایک عام شہری تھے، ایک ٹیلی کام کمپنی کے ملازمین تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ لیکن لوگوں کا جو اسٹیٹمنٹ تھا، جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بچہ بھی چلا رہا تھا، رو رہا تھا، اس کو اس کے اہل خانہ کے حوالے کیا گیا، وہ سب کیا سینیریو تھا؟ دیکھیے بلال، جو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو میڈیکل کٹ ہے کیونکہ وہ دکھائی دے رہی تھی تو ان کو لگا کہ یہ جو بچے کو، کیونکہ گاڑی جا کر رکی، جب رکی تو ارد گرد ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد بچے بھی جمع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بھی دیکھنے آتے ہیں۔ اگر باہر سے یہ ہوتا ہے عموماً کہ باہر سے کوئی نیا شخص یا کوئی نئی چیز آئے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کیوں موجود ہے، تو اس وقت لوگ وہاں جمع ہوئے، اور شاید کسی کے پکارنے پہ، بچے کے پکارنے پر جب یہ شور شرابہ ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے یہ سمجھا۔ دیکھیے جب لوگ یہ بات سمجھنے کے بعد قتل کرنے جا رہے ہیں، اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، تو وہ تصدیق بھی کر سکتے تھے،
ٹھیک ہے۔ गाड़ी वालों की भी तस्दीक कर सकते थे, गाड़ी की भी तस्दीक कर सकते थे, उन गरीबों के कार्ड भी चेक कर सकते थे। लेकिन अब मैं उस बात की तरफ ला रहा हूं आपको, ये पूरा वाकया हो गया, 2 लोग अपनी जानों से चले गए, पुलिस वहां कहीं दिखाई नहीं दी। उसके बाद मुलजिमान को पकड़ने के लिए गए तो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद ब्लॉक करने के बाद भी कोशिश की गई कि किसी तरीके से जो है ब्लैकमेल करके, सड़क ब्लॉक करके इन मुलजिमों की गिरफ्तारी को रोका जाए। ठीक है। अब पहला वाकया जिसके अंदर 2 लोग जान से गए वो मुलजिम, दूसरा वाकया जिन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और सरकार को अपना काम करने से रोकने की कोशिश की, पुलिस को अपना काम करने की, वो दोनों ही मुलजिम ठहरे। बिलाल देखिए, एक तरफ अदम बर्दाश्त डाकुओं की बात कराची के अंदर ये मामूल की बात है, और ये इस वाक़े के बाद भी कल भी ऐसा ही हुआ। जब एक वाक़या हो जाता है तो मुतलका एसएचओ फोन उठाने से कासिर हो जाते हैं। आपको कोई आएगा, आने के बाद आपको गोलियों का निशाना बनाएगा, आप मुतलका थाने में राब्ता करेंगे, एसएचओ साहिबान फोन उठाने से कासिर हो जाएंगे, सिर्फ इस बात पे कि जी वो नाके पे खड़े थे तो नाके पे फोन क्यों नहीं होता उनके पास। दूसरी बात यह है कि पुलिस कितनी देर में यहाँ पहुंची। तीसरी बात यह है कि जब सिंध काबीना ने जो बात आपने की, 5 मिलियन रुपीस की ग्रांट का ऐलान किया कि इन गरीबों के घर पे दी जाएगी, जो 2 लोग शहीद हो गए। अब देखिए, जो कमेटी भी एक बनाई जा रही है कि जी मोबाइल मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और उसके अंदर सिंध काबीना के अफराद होंगे, जो वहां पर जब भी कहीं पे कोई वाकया पेश आए, मॉब इकट्ठा हो जाए तो उसको डिस्बर्स करने के लिए ट्रेन करेंगे पुलिस को। अब पहली बात, पुलिस जिस काम के लिए ट्रेंड है वो काम क्यों नहीं कर रही? पुलिस के एहलकार आपको नजर आते हैं कि कहीं मामनत करते हुए, और कहीं पे नजर आते हैं पुलिस के एहलकार खुद मंशियात बेचते हुए, कहीं पे दिखाई देते हैं कि खुद डकैतियां करते हुए। ये तो एक तरफ की बात रह गई। अब बात करते हैं जिसमें मैं बार कह चुका, आप और मैं बात कर चुके। अब जब इतना बड़ा वाकया सानिया पेश आ गया, उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ और उसमें पता चला कि जितने बेशतर अफराद गिरफ्तार हैं वो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो गैर मुल्की अफराद हैं, उनके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, उनका कोई डेटा मौजूद नहीं है पाकिस्तान डेटाबेस में, नादरा के पास कोई चीज महफूज नहीं। तो जब हम बार कह चुके कि कच्चे इलाकों में, गुंजान इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशंस की जरूरत है, यहीं से चोर, डाकू, डकैत और दहशतगर्द आते हैं, तो इस बात पर कराची पुलिस चीफ और फिर आईजी सिंध क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? क्यों आप देने की जरूरत पड़ी कि जब वाकया हो गया उसके बाद क्यों आपको पता चला कि कितने लोग गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं? ये वही लोग हैं जो यहाँ पर आपकी पनाह में रह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो आपने जिन पे तरस खाया हुआ है, ये वही लोग हैं जो वहां से भागकर आपके मुल्क में पनाह भी लेते हैं और आपके शहरियों को बेदर्दी से कत्ल भी करते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करने के लिए सड़कें भी ब्लॉक करते हैं। तो उन लोगों को पहली फुर्सत में पॉइंट आउट करने की जरूरत है। ठीक है, अभी 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 40 मुश्तबा अफराद हैं जिनको अब हिरासत में लेना है। लेकिन आज कोशिश की गई तो सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 लोगों ने भी पुलिस पर फायरिंग की है, क्या उनको भी हिरासत में ले लिया गया है? जी देखिए, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है और हैरानकुन तौर पे जो 40 मुश्तबा अफराद थे उसमें से 13 के पास तो डेटा ही नहीं था। अच्छा। यानी कि मैं फिर बता रहा हूँ, शिनाख्ती कार्ड मौजूद ही नहीं थे, ना ही उनका कोई रिकॉर्ड जो है नादरा के पास मौजूद था। अब पुलिस इस बात पे भी गौर कर रही है कि उनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के दफात के तहत भी मुकदमा दर्ज करे। लेकिन इन तमाम चीजों के दरमियान में आईजी सिंध एक तरफ बात करते दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ एसएसपी किमाड़ी बात करते हुए दिखाई देते हैं, तीसरी जानिब जो एसएचओ हैं परवेज सोलंकी वो मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस सब वाकये के बाद वो लोग जो बड़े बनकर इनकी जिम्मेदारी लेकर सड़कों पर आए थे, उन लोगों की बात करते हुए कोई दिखाई नहीं देता। जो 2 मुल्जिम भी मरकजी गिरफ्तार किए गए सीसीटीवी फुटेज की मदद से, मोहम्मद हुसैन जिसको उर्फियत में शरारती बाबा और उसके साथ एक और मुल्जिम, दोनों मुल्जिमान को जब गिरफ्तार किया गया तब भी इनकी गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की गई और मज़ाहमत का सामना था पुलिस को, जिसके बाद जख्मी हालत में मुल्जिम को गिरफ्तार किया। पुलिस उनको इस हालत में भी नहीं ला सकी कि सही सलामत लाते, क्योंकि मुकाबला हुआ और उसके बाद इन लोगों को लाया गया। बिलाल,
कराची पुलिस के लिए चैलेंज बन चुकी हैं दो चीजें। ठीक है। एक तरफ कहा जाता है कि अब सेंट्रल की बात कर रहे हैं तो अभी कहा गया कि जी लसानियत की फिर बात की गई कि फलां शहर से आए हुए फलां सूबे से आए हुए लोग जो है वो गैंग की सूरत में यहाँ पर डकैतियां कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर सेंट्रल में फलां सूबे और शहर से आए ये भी एडिशनल आईजी कराची कह चुके, लसानियत पे भी बात कर चुके, रंग नस्ल पे भी बात कर चुके। अब पुलिस की स्ट्रेटेजी क्या है, पुलिस क्यों नहीं इनको रोक पा रही और इस तरह का मोराल क्यों बन गया कि कराची जैसे मेगा सिटी के अंदर हालात इतने खराब है कि लोग खौफ खाकर लोगों को मारने लगे। ये तो इस तरह हो गया कि कोई अपनी जान बचाने के लिए किसी को मारता। यहाँ पर उनके पास हथियार नहीं थे, किसी ने चेक नहीं किया, वो बेचारे अपनी मुलाजमत को पूरा करने आए थे और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद उनकी गाड़ी को भी आग लगा दी गई। यानी कि इतनी शिद्दत पसंदी कि उन गरीबों की वो गाड़ी जिसपे वो आए थे उनको भी आग लगा दी गई। इस पूरे साने में जहां पर एक तरफ वो लोग जिम्मेदार हैं, वहीं पे ये वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो शहर की अमन की जमानत देते हैं और अब तक अमन कायम करने में नाकाम दिखाई देते हैं। गैर कानूनी असले की बात, ऐसे वाकयात की बात और इसकी रोकथाम की सिर्फ बात की जा रही है, इस पे कोई काम नहीं किया जा रहा। अभी 7 मरकजी मुल्जिमान है, बाद में बाकी लोग भी सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़े जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये कह देना बिलाल ठीक है, ये 7 मुल्जिमान को जो गिरफ्तार किया है इस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, ये मुकदमा पहले ही दर्ज हो चुका था, उसकी बेस पर ये गिरफ्तारी हो रही है? जी देखिए, मुकदमा तो पहले ही जो है एक शहीदी करूंगा मैं, जो 2 लोग अपनी नौकरी के लिए गए और उसके बाद फिर जो है वो शहीद कर दिए गए क्योंकि वो अपनी रोजी के लिए गए थे। तो मकतूल इसाक के जो चचा उनकी मुद्दत में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत पुलिस ने पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसमें 15 अफराद को तो सीसीटीवी फुटेज देखकर नामजद किया गया है और 200 से ज्यादा अफराद ऐसे थे जिनको जो है ना शामिल तफ्तीश किया गया। इसी तरीके से इसाक के साथ जो इंजीनियर अहमद जावेद थे वो सिग्नल टेस्ट करने के लिए गए थे मच्छर कॉलोनी में। अब आप इस बात का अंदाजा कर लें कि एक तरफ आप लोगों को एरियाज की बात करते हैं कि हमने खत्म कर दिए और अब सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी इदारों के लिए कि कराची में अब भी ऐसी जगहें मौजूद हैं पोश एरियाज के पास, तो उनको खत्म करें और कोई इलाका ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर कोई भी शख्स अगर बाहर से गया, ये किसी और मुल्क में नहीं गए थे, ये किसी और शहर में भी नहीं गए थे, ये किसी ऐसे शख्स के पास भी नहीं गए थे कि जो शख्स खुद मुश्तबा होता है, ये तो अपने काम पे गए थे और उसके बाद कराची जैसे शहर में रहते हुए इनके साथ इतना बड़ा जुल्म ज्यादती हो गई। तो इसको देखने ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कराची पुलिस चीफ की, तो ये रात के औकात में भी अपनी टीम के हमरा निकलते हैं और बायोमेट्रिक सिस्टम को के ज़रिए लोगों की शनाख्त का अमल भी जारी है, तो इसको कहाँ तक पहुँचाया गया लोगों को बायोमेट्रिक कराने के लिए? अब बिलाल आप बायोमेट्रिक की बात कर लें कि जी उनका डाटा चेक हो रहा है, या आप बात कर लें कि कराची पुलिस चीफ खुद निकलते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा वो कौन लोग हैं जो सरप्राइज विजिट की भी इत्तला दे देते हैं, उनको कराची पुलिस चीफ खुद चेक कर लें कि वो जिस एरिया में जा रहे हैं उनको किस तरह इत्तला हो जाती है कि उस इलाके के अंदर कराची पुलिस चीफ आ रहे हैं। फिर पहले भी हम बात कर चुके, वो लोग जिनके क्रेडिट के ऊपर बहुत सारी चीजें थी उनको कराची से निकाल कर उनकी जगह वो लोग जो कराची में रहते हुए जिनका अपना रिकॉर्ड ऐसा है कि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो किस तरीके से तैनात होते चले जा रहे हैं। क्या कराची पुलिस चीफ उस बात से भी बेबैन है या उनको बताया नहीं जा रहा है कि जिस अफसर को तैनात किया जा रहा है एसएचओ की सीट पर, उस अफसर के खाते में पहले से कितने इल्जाम हैं उस शख्स के ऊपर, और क्यों क्या जरूरी है कि एक शख्स जिस पे पहले से इल्जाम मौजूद है उसको चौकी इंचार्ज या एसएचओ तैनात किया जाए? क्या इससे पहले ये मुमकिन नहीं कि उसके रिकॉर्ड को चेक कर लिया जाए? लेकिन अगर इसी तरीके से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल या ऐसे पुलिस अफसरान जिनके ऊपर एटीसी की एफआईआर दर्ज है और वो या तो उसके अंदर बिलावास्ता या बिलवास्ता मुलविस है, उनको एसएचओशिप दी जा रही है, तो इसका मतलब तो वाज़े तौर पे ये है कि सिर्फ वक्त गुजारने के लिए लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है। अब कराची पुलिस चीफ को खुद देखना होगा कि वो कौन लोग हैं जो इनको अकोमोडेट कर रहे हैं और क्यों किसी को हक पर लाकर ये सीट पर नहीं बिठाते, क्यों किसी ऐसे अफसर का काम नहीं होने देते या बैठने नहीं देते जिसके क्रेडिट पे पहले बहुत सी कार्रवाई है,
तो इसका मतलब वाजह है वो लोग जो गुज़िश्ता एक साल में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पुलिस की तरफ से सजा याफ्ता हुए, वही एसएचओ की सीट पर, तो क्या कराची पुलिस चीफ सीरियस दिखाई देते हैं आपको? ठीक है। क्या कराची के हालात इस तरीके से सुधारे जाएंगे, या आप क्रिमिनल्स को छूट दे रहे हैं कि आ जाओ हमने तुम्हारे मतलब का शख्स बिठा दिया, अब इससे साजबाज करके कराची में जो कुछ कर सकते हो तुम कर लो। खुदारा बारहा बार हम पहले कह चुके, कराची के लोगों की तकलीफों का हल निकालें, क्योंकि आप पर जिम्मेदारी है, आप कराची पुलिस चीफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी, चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त कराची पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है उन लोगों का क़याम कराची के अंदर जिन लोगों की कोई शनाख्त नहीं है या जो इस वक्त कराची के शहरी नहीं है, पाकिस्तान के शहरी नहीं है, बेसिकली उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर वो किसी भी जराइम की एक्टिविटी के अंदर मुलव्विस होते हैं तो आप कैसे उनकी शनाख्त करेंगे, किस तरह से आप उनको पकड़ेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज है वो भी शामिल करते हैं।